Hello students, since we are all locked up at home and we can't conduct live lectures, I am starting with a series of lectures so that you all can sit at home and revise for your exams. जब कभी एग्जाम शुरू होंगे, you all will be prepared for it. और आज हम लोग जो वीडियो शुरू करने वाले हैं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 इसका पहला पार्ट होगा. This act will be completed in a series of lectures. Similarly, we'll be starting with lectures for economics, economics for finance, and law for CA foundation course also. फिलहाल हम लोग आज अभी CA इंटर का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट देखने वाले हैं, पार्ट 1. Let's begin. Negotiable Instruments Act 1881. This act came into force on 1st March 1882. Negotiable instruments. What do you mean by negotiable instruments? We'll be looking at the definition, section 13 later. First, let's understand the meaning of a negotiable instrument. अगर हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, the word negotiable. Negotiable का मतलब होता है transferable. Transferable means transferable from one person to another. What do you mean by an instrument? Instrument means a written document. That means negotiable instrument is a written document which can be transferred from one person to another. लेकिन सिर्फ ये दो फीचर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है. अगर किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट को, ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बुलाना है, इट शुड हैव दीज फीचर्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. द फर्स्ट फीचर, जैसा कि हमने मीनिंग में देखा, ट्रांसफरेबिलिटी. इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बुलाना है तो पहला फीचर होगा ट्रांसफरेबिलिटी. इट शुड बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. Now, how many times can you transfer a negotiable instrument? Any number of times, infinite number of times. Example के तौर पे अगर हम लोगों ने एक let's say bill of exchange draw किया है for 60 days. अब ये bill of exchange X से Y की तरफ गया, Y से Z transfers it to Mr. P, to Q, to R. So this way, ये 60 days के अंदर ये negotiable instrument, that is the bill of exchange, can be transferred infinite number of times. So transferability is possible infinite number of times, but एक condition है, transfer should happen before the date of maturity. Next is transfer कैसे करना है. There are two methods of transferring a negotiable instrument. One is endorsement. Second is delivery. Endorsement means you are transferring or endorsing the negotiable instrument in favor of a specific person. मतलब जब आप वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहे हो, आप ट्रांसफरी का नाम लिख रहे हो. जिस पर्सन को आप ट्रांसफर कर रहे हो उस पर्सन का नाम आपने स्पेसिफाई किया. इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर करना थ्रू एंडोर्समेंट. सेकेंड वे इज डिलीवरी. डिलीवरी मीन्स मियर डिलीवरी. हाथ में दे दिया, ट्रांसफर हो गया. अब ये कब पॉसिबल है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक बेरर चेक. बेरर चेक मैंने साइन कर दिया, अमाउंट लिख दिया और मैंने ये चेक आपके हाथ में दे दिया. तो जिसके हाथ में वो चेक है, दैट पर्सन कैन क्लेम द मनी. सो यहाँ पे मैंने वो चेक मुझसे ट्रांसफर किया टू सम लेट्स से मिस्टर एक्स. अब मिस्टर एक्स का नाम उसमें नहीं लिखा है, बट वो पैसे क्लेम कर सकता है. दैट मीन्स मैंने ट्रांसफर कर दिया ओनली थ्रू डिलीवरी. एंडोर्समेंट नहीं किया, मैंने उसका नाम नहीं लिखा. लेट्स से मिस्टर एक्स को 10,000 पे करने हैं मिस्टर वाई को, तो अब वो क्या करेगा? सीधे चेक उठाकर मिस्टर वाई को दे देगा. मिस्टर वाई का नाम नहीं लिखा, बस हाथ में चेक दे दिया. लेकिन क्योंकि चेक बेरर है तो क्या हो जाएगा? मिस्टर वाई कैन क्लेम द मनी. सो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय मियर डिलीवरी. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड through two different methods, that is endorsement. Endorsement means you specify the name of the person in whose favor you are transferring, and second is delivery. Delivery, here you don't mention the name, you just transfer the instrument. Second essential feature of a negotiable instrument is independent title. Independent title means the title of the transferee is independent from the title of the transferer. अब जनरली क्या होता है, लेट्स से मैंने एक बेरर चेक साइन करके यहाँ पे रखा हुआ था और वो लेट्स से गिर गया और क्लासरूम में किसी स्टूडेंट ने वो चेक उठा लिया. अब क्योंकि वो बेरर चेक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, जिसके हाथ में होगा दैट पर्सन कैन क्लेम द मनी. अब मैंने उसमें 10,000 लिखा हुआ है, साइन भी किया हुआ है. जिस किसी स्टूडेंट ने ये चेक उठाया, इज ही अ राइटफुल ओनर ऑफ द चेक? आंसर इज नो. एक्चुअली वो 10,000 रुपए क्लेम नहीं कर सकता because he is not the owner of the check. लेकिन अब उसने किसी मिस्टर
एक्स से कुछ गुड्स खरीदे और मेरे स्टूडेंट ने पेमेंट के तौर पे वो बेरर चेक उसको दे दिया। अब ये जो मिस्टर एक्स है इसे थोड़ी पता है कि स्टूडेंट ने गिरा हुआ चेक उठा लिया है, करेक्ट। सो दैट मीन्स अब यहाँ पे ट्रांसफरर कौन है, मेरा स्टूडेंट, ही इज द ट्रांसफरर। उसने ये चेक हाथ में दे दिया किसके, मिस्टर एक्स के, जो ट्रांसफरी है। अब देखा जाए तो मेरा स्टूडेंट जो है ही इज नॉट अ राइटफुल ओनर ऑफ द चेक। सो दैट मीन्स मेरे स्टूडेंट का टाइटल क्लियर नहीं है। लेकिन मिस्टर एक्स ने जब वो चेक उससे लिया, उसके बदले उसने गुड सेल किया है, उसने गुड फेथ में वो चेक लिया है, तो जो ट्रांसफरी है मिस्टर एक्स है उसका टाइटल अफेक्ट नहीं होगा। सो दैट मीन्स ट्रांसफरर का टाइटल में अगर कुछ डिफेक्ट है, इट विल नॉट अफेक्ट द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी, विच मीन्स दिस पर्टिकुलर फीचर ये क्या कहता है, द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक के टाइटल में डिफेक्ट होने से दूसरे का टाइटल अफेक्ट नहीं होता। सो दिस वाज द सेकेंड फीचर। थर्ड इज राइट टू सू। राइट टू सू मीन्स केस फाइल करना। तो अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है जो डिसऑनर हो गया तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बोला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो सकता है वन पर्सन टू अनदर। सो अज्यूमिंग ए से बी को ट्रांसफर हुआ, टू सी, टू डी, टू ई, ऐसे चेक ट्रांसफर हो गया। अब इसका जो पे करने वाला बंदा था वो था एक्स। अब ई जब एक्स के पास आया पेमेंट मांगने के लिए, एक्स ने पे नहीं किया, एक्स ने पे करने से मना कर दिया, ठीक है। सो दैट मीन्स अब होल्डर तो ई है, तो ई क्या करेगा, क्या ई एक्स के अगेंस्ट केस कर सकता है? आंसर इज यस। आइडियली देखा जाए तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप में डी इज द डेटर और उसने पेमेंट के तौर पे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया था ई को। तो ऐसा नहीं है कि ई कैन आस्क द मनी ओनली फ्रॉम डी, ई कैन डायरेक्टली फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स। तो इसका मतलब ये है राइट टू सू, दैट इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन सू इन हिज ओन नेम। तो E कैन फाइल अ केस अगेंस्ट X इन हिज ओन नेम। उसको D, B, C इनकी हेल्प की जरूरत नहीं है, उसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और अगर वो डिसऑनर हुआ है he कैन सू इन हिज ओन नेम। अब यहाँ पे हमने एक नया वर्ड देखा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, डिटेल में इसके बहुत सारे सेक्शंस हम देखने वाले हैं। शॉर्टकट में देखा जाए तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा, मेरा जो स्टूडेंट था जिसने मुझे कोई गुड सेल नहीं किया, मुझे उसे कोई पैसे नहीं देने थे, मैंने गलती से मेरा बेरर चेक गिरा दिया, उसने उठा लिया। माई स्टूडेंट इज अ होल्डर बट ही इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि उसके पास वो जो चेक आया है वो राइटफुली नहीं आया है। हाँ, लेकिन वो जो मिस्टर एक्स था जिसने मेरे स्टूडेंट को गुड सेल किया था, उसने ईमानदारी से वो चेक हासिल किया, दैट पर्सन इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये जो मिस्टर ई है ये खुद के नाम पे, ही कैन सू मिस्टर एक्स in his own name provided he is a holder in due course. So this is the third feature, right to sue. The holder in due course can sue in his own name. कुछ और फीचर्स है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये जो बचे हुए फीचर्स है ना, इसको हम प्रिजम्पशंस भी बोलते हैं। मतलब अगर आपके सामने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया तो आप कुछ चीजें अज्यूम कर सकते हो, कुछ चीजें प्रिज्यूम्ड है उसके बारे में। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहला वाला सर्टेनिटी। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी सर्टन अबाउट व्हाट, सर्टन अबाउट द डेट ऑन विच द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड। सो अगर चेक के ऊपर डेट ही नहीं लिखा है, अब चेक जनरली 3 महीने के लिए वैलिड होता है, अगर आपने डेट ही नहीं लिखा तो 3 महीने कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो डेट होना चाहिए, मेच्योरिटी डेट होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए। सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी सर्टन, टाइम ऑफ पेमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए। अब जैसे चेक में तो डेट से काम चलता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, कभी किसी ने ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज बोला दैट I will pay rupees, let's say 10,000 to Mr. X or his order. Pay Mr. X or his order a sum of rupees 10,000 on receiving the goods in good condition. अगर ऐसा लिखा, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा बनाया, on receiving the goods in good condition. अब goods good condition में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। That means पेमेंट करना है या नहीं ये सर्टेन नहीं है। So, अगर बोला गया होता पे मिस्टर एक्स और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000 60 डेज आफ्टर डेट। 60 डेज आफ्टर डेट मीन्स आज की अगर डेट है बिल ऑफ एक्सचेंज, आज से 60 डेज बाद प्लस 3 डेज ग्रेस एड होंगे, विच विल लुक एट द कैलकुलेशंस लेटर। सो इसका मतलब क्या है? द टाइम ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ मेच्योरिटी शुड बी स्पेसिफिक, इवन अमाउंट शुड बी स्पेसिफिक। पे मिस्टर एक्स और हिज ऑर्डर अ रीजनेबल अमाउंट, अगर ऐसा लिख दिया तो अब रीजनेबल अमाउंट क्या है? मेरे लिए रीजनेबल अमाउंट 10,000 हो सकता है, मेरे सेलर के लिए रीजनेबल अमाउंट 15,000 हो सकता है।
दैट मीन्स मेरा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो सर्टेन नहीं है, सर्टेन अबाउट अमाउंट. सो सर्टेनिटी का मतलब क्या है? इट शुड बी सर्टेन रिगार्डिंग द डेट, द मेच्योरिटी, अमाउंट. नेक्स्ट इज ड्यूली स्टैम्प्ड. जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहेगा हम अज्यूम करेंगे कि उस पर रिक्वायर्ड स्टैम्प ड्यूटी पे की गई है. दिस इज सिंपल. सेकेंड, दैट द होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब इसका मतलब क्या है? जब वो बेरर चेक का हमने जो एग्जांपल देखा, मेरे स्टूडेंट ने मिस्टर एक्स को जो बेरर चेक दिया है, अब वो एक्स जो है मेरी बैंक के पास जाएगा और 10,000 रुपए मांगेगा. बैंक ने 10,000 रुपए दे दिया. अब बैंक को थोड़ी पता है कि वो चेक नीचे गिर गया था, स्टूडेंट ने उठाया, फिर वो मिस्टर एक्स को दे दिया. करेक्ट? ये क्यों है? बैंक के पास ये राइट क्यों है? क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से जब भी वो चेक बैंक के सामने आएगा, बैंक कैन प्रिज्यूम, हम प्रिजम्पशन देख रहे हैं ना, बैंक कैन प्रिज्यूम कि ये जो होल्डर है मिस्टर एक्स, ही इज एक्चुअली अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. और हमने एग्जाम्पल में देखा था मेरा स्टूडेंट होल्डर नहीं है, बट मिस्टर एक्स होल्डर इन ड्यू कोर्स है. अगर मेरा स्टूडेंट खुद जाता बैंक के पास वो बेरर चेक के पैसे लेने, तो क्या वो बैंक पैसे देता? अनलेस मैंने स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर दिया हो. अगर मैंने स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर नहीं दिया है तो क्या बैंक मेरे स्टूडेंट को भी 10,000 दे देता? आंसर इज यस. क्योंकि बैंक के पास ये राइट है प्रिज्यूम करने का कि जो भी उसके सामने होल्डर आया है, दैट होल्डर इज एक्चुअली अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. ही इज होल्डिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ. So this is the third presumption which says the holder of the instrument is a holder in due course. Next is time of transfer. Time of transfer is important. हमने अभी देखा फर्स्ट फीचर में, how many times can you transfer a negotiable instrument? n number of times, infinite number of times. लेकिन ट्रांसफर कब होना चाहिए? Obviously मेच्योरिटी से पहले. अगर मेच्योरिटी डेट इज लेट्स से 25th of July 2020, तो आज की डेट पर बना हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितनी बार ट्रांसफर हो सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स. लेकिन प्रोवाइडेड सारे ट्रांसफर्स कब होने चाहिए? 25th जुलाई 2020 से पहले. सो ऑल द ट्रांसफर्स शुड टेक प्लेस बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी. द लास्ट प्रिजम्पशन इज एज टू डिसऑनर. अब क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा, मिस्टर ई जब एक्स से पैसे मांगने जा रहा था, एक्स ने पैसे देने से मना कर दिया. इसका मतलब क्या है? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया. अब डिसऑनर होगा तो केस फाइल होगा, सूट फाइल होगा. अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटेस्ट. ये चीज हम पेंडिंग रखते हैं, अभी आगे के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे. प्रोटेस्ट क्या होता है? इसको जब कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, रिकॉर्ड करवाना पड़ता है. तो हम देखेंगे नोटरी पब्लिक के पास जाकर फैक्ट ऑफ डिसऑनर को हम नोटिफाई करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट लेंगे. ऑल दोस थिंग्स विल बी डेल्ट विद लेटर. सो अगर ये मिस्टर ई ये प्रोटेस्ट के साथ, फिलहाल के लिए इतना समझ लो, प्रोटेस्ट क्या है? एक सर्टिफिकेट जैसा कोई चीज है जिसमें डिसऑनर के सारे फैक्ट्स लिखे होंगे. सो अगर मिस्टर ई कोर्ट के पास सूट फाइल करने जब जाता है, प्रोटेस्ट के साथ जाएगा, तो इट विल बी अज्यूम्ड कि बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक डिसऑनर हो गया है. अब अज्यूम करना मतलब क्या? कोर्ट मिस्टर ई को नहीं बोलेगा साबित करके दिखाओ कि पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या चेक डिसऑनर हुआ है. कोर्ट प्रिज्यूम करेगा. फिर इसका मतलब क्या है? अब एक्स को प्रूव करना पड़ेगा. बर्डन ऑफ प्रूफ एक्स के पास होगा कि नहीं, ये तो पैसे मांगने आया ही नहीं, मैं तो पैसों के साथ रेडी था. सो ये सब जो भी प्रूव करना है एक्स को करना होगा, क्योंकि जब भी प्रोटेस्ट लेकर कोई भी पर्सन जाता है सूट फाइल करने कि ये पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है, तो अज्यूम किया जाएगा कि यस डिसऑनर हुआ है. सो कब होगा ये? ओनली इफ द पर्सन गोज विद अ प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट क्या है? एज आई सेड हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे. फिलहाल के लिए विल अज्यूम इट इज अ सर्टिफिकेट काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें डिसऑनर होने के डिटेल्स कुछ मेंशन होंगे. सो दीज आर द प्रिजम्पशंस टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सो अगर नेगोशिएबल किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ये सारे फीचर्स है, ये प्रिजम्पशंस वाले फीचर्स है, वी कैन कॉल इट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. लेकिन सेक्शन 13 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है, इट सेज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स सर्टेन थिंग्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सक्लूड्स सर्टेन थिंग्स. अब इंक्लूड क्या करता है और एक्सक्लूड क्या करता है और क्यों, ये देखते हैं. इट इंक्लूड्स अ प्रोमिसरी नोट, इट इंक्लूड्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इट इंक्लूड्स अ चेक. अब इसके सामने मैंने सेक्शन नंबर्स लिखे हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6. सो हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम डिटेल में आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं. फिलहाल ये तीन चीजें तो इंक्लूड होंगी. एक्सक्लूजन पे जाते हैं. इट डज नॉट इंक्लूड या इट एक्सक्लूड्स करेंसी नोट्स. करेंसी नोट हम लोग जो पैसे इस्तेमाल करते हैं, करेंसी नोट,
इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर नहीं किया है। अब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम तो सोच ही नहीं रहे थे कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा सोचोगे तो स्पेसिफिकली मेंशन क्यों किया? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जो नोट है, करेंसी है, इट लुक्स लाइक अ प्रोमिसरी नोट। हम जब सेक्शन 4 देखेंगे तो प्रोमिसरी नोट का एक फॉर्मेट देखेंगे जिसमें लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे मिस्टर एक्स और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000। कुछ ऐसे फॉर्मेट में प्रोमिसरी नोट बनते हैं। अगर आप करेंसी नोट को भी देखोगे तो आई प्रॉमिस, उसमें लिखा होता है, 100 रुपीज का नोट है तो लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम और अ वैल्यू ऑफ ₹100। 500 होगा तो सम और वैल्यू ऑफ ₹500, ये लिखा होगा और नीचे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो प्रोमिसरी नोट ही है। करेंसी नोट इज एक्चुअली अ प्रोमिसरी नोट। तो उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड क्यों किया? क्योंकि वो इश्यू करने वाला गवर्नमेंट है, तो उससे रिलेटेड जो लॉज होंगे वो गवर्नमेंट देखेगा। कोई एक एक्ट एक्सक्लूजन इज हुंडी। ना हुंडी इज एक्चुअली अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अगर हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज है, सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस होने वाला है, तो उसको एक्सक्लूड क्यों किया? सो हुंडी इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन वर्नैक्युलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में लिखा है। तो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज लेट्स से मराठी में लिखा है, कन्नड़ में लिखा है, तमिल में लिखा है, तो हम उसको, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडी बोलेंगे। तो हुंडी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर नहीं करते। क्यों नहीं कवर करते? क्योंकि उसको गवर्न करने वाले जो प्रिंसिपल्स है वो लोकल कस्टम्स है। उस पर्टिकुलर एरिया में जो कस्टम्स है उस हिसाब से हुंडीज का लेन देन होता है। फिर अगर सपोज ऐसा कुछ सिचुएशन आया जो लोकल कस्टम्स में नहीं लिखा है या इट इज नॉट कवर्ड अंडर लोकल कस्टम्स, तब हम क्या करेंगे? तब हम लोग एक्सेप्शन सिचुएशन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को रेफर कर सकते हैं। तो हुंडी के केस में हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को रेफर आइडियली नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जिसके बारे में लोकल लॉज या लोकल कस्टम्स बात नहीं करते हैं, देन इन दोस एक्सेप्शनल सिचुएशंस हम हुंडीज पर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर। सो मनी ऑर्डर इज नॉट इंक्लूडेड। ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड। नोट को इंक्लूड नहीं किया तो ट्रेजरी बिल्स को तो ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं करेगा। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या कवर होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स अ प्रॉमिसरी नोट, bill of exchange and a check, but it excludes currency note, which is actually a promissory note, but we are not calling it promissory note. Second, hundi, which is actually a bill of exchange, we are not calling it bill of exchange under Negotiable Instrument Act, but exceptional situation mein we can refer to Negotiable Instruments Act. Next is post office money orders and treasury bills. So this was the content for this particular video. We'll come with the next videos. We'll be discussing, in the next video, we'll be discussing section 4, promissory note, section 5, bill of exchange, and so on. Stay tuned for the next video in the series for Negotiable Instrument Act. And if you have any doubts, you can ask in the comment section. And the class students, you all have the WhatsApp group. You all can ask the doubts on the WhatsApp group also. Till then, happy learning. Thank you.